1 ready 1 2 3 ਹਾय 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 ਪੀਡੀਐਮ 2.0 हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਵਾਜ਼ ਦੋ ਨਾ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ हाँ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪੋ हाँ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੋ ਇਹ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ 45 ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ठीक है ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक है ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਾਈ किन्ने ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ठीक है ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੋ बिल्कुल ਯਾਦ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ बिल्कुल ਕੈਸੇ 14 ਤਬਕ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ठीक है ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ सस्ती हो जाती ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਕਟਵਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ क्यों ਇਹ ਸਰ ਸਸਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। अच्छा ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈ है ना ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪੀਡੀਐਮ 2.0 ये पीडीएम 2.0 है क्या ਯਾਰ ਆਸਾਨ ਪੀਡੀਐਮ हाँ ਪਿੱਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ओके छोटी छोटी पार्टी नालों नहीं है ना और 2 क्या है 2 पॉइंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान PMLN ओ तो ये 2 है जी और ओ वो इस मौके पे एक शेर याद आया कि वही हुआ है जो होता है हुआ करता है हाँ यार ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ठीक है ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਓ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ कौन बैठा ਆਪਣਾ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ उस्मा बुखारी नहीं है ਆਪਣਾ ਉਜ਼ਮਾ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬਾ यस ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਯਾਰ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ अवार्ड उनको चाहिए ही नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਰਾਮੇ 'ਚ कौन भाई ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ अरे वो भाई नहीं है उनका ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖ ਉਹ ਲਓ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ हाँ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ मॉडलिंग ਯਾਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2-3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਫਲਾਵਰ ਆਏ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫਾਲੋਵਰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ आपके ही आए हैं मेरे तो नहीं है ਓਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰ ਅਨਫਾਲੋ ਹੋਏ ਨੇ हाँ जी होते ही हैं ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ Can I have a fresh photo? Yes, of oh, course. yes, please, mashallah. ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਐਕਟਰ Tell, tell, ਇਮਾਨ tell. ਨਾਲ ਹੈ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ to the point. Thank you, sir. Have a great evening. ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਨਰਗੋਲੀ ਇਸਮਾ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਓ वेलकम बैक टू गपशप जी रीच अली अभी आप बता रहे थे कि आप पेंटिंग करते हुए गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रखती रियल लाइफ में भी आप इतने परफेक्ट हैं बिकॉज आई नो आप मॉडलिंग को लेके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके बहुत सिलेक्टेड और बड़ा परफेक्शन को नोट करते हैं देखिए हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता परफेक्ट होने की कोशिश की जा सकती है बट आप परफेक्ट नहीं हो सकते और अगर आप परफेक्ट हो जाओगे तो मेरा ख्याल है कि फिर आपके पास कोई भी रीज़न नहीं होगी कि आप मोटिवेट रह सको तो आपको अपनी इम्परफेक्शंस लेके बगैर कॉन्शियस हुए उन इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके तो अपनी लाइफ के साथ साथ चलाना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो इम्परफेक्शन के साथ अच्छी लगती हैं हर चीज़ परफेक्ट अच्छी नहीं लग सकती और वैसे भी जैसे आप परफेक्ट हो गए ना तो कामयाब हो जाओगे जो बंदा परफेक्ट नहीं होता फिर वो किसी कॉमेडी शो का होस्ट होता है मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं दूसरे शो की मुझे पता है बिल्कुल उस्मा जी
आपने रिसेंटली मन्नत मुराद ड्रामा किया है, पिछले सालों में आपके जो जितने भी ड्रामाज आए वो ज्यादातर पहाड़ों में आपने किया। पहाड़ पसंद आ गए थे या आपको मुझे आई स्क्रिप्ट लव की डिमांड नेचर, थी? तो पहाड़ ऑब्वियसली, और मेरा ख्याल है कि वैसे भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है शहर से बाहर निकल के काम करने की। आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी उसका जो भी ड्रामा आप बना रहे हैं वो ड्राइंग रूम से निकल के, कमरों से निकल के अगर आप आउटडोर्स में जाते हैं तो विजुअली भी, एंड यस आई लव बीइंग इन द माउंटेन्स एंड आई एम बीइंग पेड फॉर इट, तो व्हाई नॉट। और सर वैसे भी पहाड़ा ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਰੀਟੇਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਡਰਨੇ से ही कर ਜਾਂਦਾ है। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे ही खौफ आता रहता है। नहीं, और वहाँ पे पहुंचे जो हम लोग इतने मुश्किलों से 3 दफा मैं गई हूँ कहीं के लिए, एंड एवरी टाइम देयर वाज अ डिफरेंट स्टोरी ट्रैवलिंग में। एक दफा तो जहाज ही ना टेक ऑफ हुआ ना, वो मतलब सुबह से बैठे हुए हैं, शाम हो गई, जहाज ने रनवे पे 4 फेरे लगे, कहा कि नहीं सॉरी, मेरा ख्याल है कि कोई पुर्जा खराब है तो लिहाजा आप कुछ और बंदोबस्त कर लें। तो देन आई वेंट बाय रोड, इट टुक मी व्हाट 13 आवर्स 14 आवर्स मेरा ख्याल है, लाहौर से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से डायरेक्ट उधर, वापसी भी फिर बाय रोड बस। तो रास्ता कैसा है मसन, मुश्किल है या तो कुछ पैचेस है, लेकिन जब इतना लंबा रास्ता हो फिर अब बंदा कुछ ना obviously कुछ तो थकावट बंदा- तो होती है। जी क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा औरंगजेब है। मेरा क्वेश्चन मैम उज़मा से है कि आपने थिएटर, फिल्म और ड्रामा तीनों प्लेटफॉर्म पे काम किया है, तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? थिएटर मैं समझती हूँ एक्टर्स मीडियम है। थिएटर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कैमरास, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कुछ भी नहीं है, आप हैं और ऑडियंस है, और जितना भी आप में दम है वो उसी वक्त पता चल जाता है। यू डोंट रियली नीड टू बैंक ऑन एनीबडी एल्स फॉर दैट, सो फॉर मी थिएटर। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मेरा नाम दानिश इश्तियाक है और मेरा क्वेश्चन जो है वो अली रज़ा सर से है कि सर आप मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, तो इस फील्ड में जो है वो आपका कोई मेंटोर है? मेरे फादर हैं। फादर है। ही इज नॉट फ्रॉम मीडिया बट ही इज माय मेंटर। रिसेंटली मैंने देखा है मॉडल्स जब एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं वो वापस अपने प्रोफेशन पे वापस नहीं जाते, सिर्फ एक्टिंग की तरफ ही फोकस करते हैं। आप आगे फ्यूचर में क्या ज्यादा परस्यू करोगे या दोनों को बैलेंस रखोगे? मैंने मॉडलिंग अब बहुत सिलेक्टिव कर दी हुई है, बहुत कम कर दी हुई है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मॉडल्स को इतना कोई नहीं जानता जितना टीवी आर्टिस्ट को, एक्टर को जानता है। Yes, yes. तो फिर जब आप एक स्टेप आप ऊपर चले गए हो तो फिर उस स्टेप को वापस आप उसी स्टेप पे आके काम करोगे तो इट डजंट मेक सेंस। एक एक्टर मॉडलिंग कर सकता है बट एक मॉडल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो एक्टर की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करे। तो इफ़ यू आर अ एक्टर देन यू शुड बी एक्टर, और जो मॉडलिंग वाला काम है वो फिर आपको एज अ एक्टर लेंगे। देखिए मैं फूडी हूँ, ठीक है, हम बट हैं, मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो एक्टिंग में आके मुझे एक चीज़ का मार्जिन अच्छा मिला है कि मुझे वो जो मॉडलिंग के लिए आपको वो इतनी डिटेल्स खाने में ये वो करनी पड़ती थी ना, तो एक्टिंग में आके आपको बहुत नेचुरल, बहुत रॉ लगना है। तो वो उसके लिए मेरे पास ये बेनिफिट है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो आई लव टू ईट, आई लव मीठा, तो I love मीठा too. आई लव मीठा 4। तो एक्टिंग में आने के बाद वैसे भी आप अगर नोन हो तो फिर वो जाहिर सी बात है कि जो आप 10 प्रोजेक्ट्स मॉडलिंग के करते थे और वो एक्टिंग में आने के बाद आप एक प्रोजेक्ट करोगे तो वो इट्स इक्विवेलेंट टू दैट 10 प्रोजेक्ट। वैसे आपको खाने बनाने का भी शौक है? सिर्फ मैं बनाता भी, मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। अपना खाना खुद ही बनाते हैं? क्या क्या बना लेते हैं भाई आप? कीमा मुझे बहुत पसंद है, मैं कीमा बना लेता हूँ। अच्छा, आई लव यू कीमा टू। लेकिन खाने की बात में तो आई हैव टू जंप और इन। मैं स्टेक्स बना लेता हूँ। अरे अपनी। वाह 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 वाह। क्योंकि हमारा मोस्टली खाना ये होता है कि मटन खा लिया, फिश खा ली, प्रॉन्स, इस तरह। तो रोटी चावल मैंने बहुत कम कर दी है। मैंने जब से डाइट शुरू की थी तो फिर मेरी लाइफ से वैसे ही वो खत्म हो गए हैं। वो बना लेते स्टेक्स, आप कुछ बना लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, आई हैड फूड एंड न्यूट्रिशन इन ओ लेवल्स फॉर 3 years, तो उनमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी, लेकिन उसके बाद बेसिकली माई मदर यूज टू कुक आफ्टर शी पास्ड अवे, तो मुझे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। तो फिर खुद ही ट्रायल एंड एरर कर करके नाउ आई मेक एवरीथिंग आई मेक। मैं जब खई की शूट पे थी तो मैंने पका के खिलाए, जिस दिन मेरा ऑफ होता था मैं किचन में होती थी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़बाता हसन। मेरा सवाल मैम उज़मा से है कि उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो कभी किसी काम को करते हुए उनको कोई प्रेशर फील हुआ? मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि एनीथिंग दैट आई हैव टू डू उसकी मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, तो मैंने कभी ये नहीं समझा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है करना। मुझे अगर यहाँ पे शो पे भी आना होता तो वो भी मुझे टेंशन हो रही होती है कि मैंने किस तरह करना, सो आई टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, और मैं किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेती। फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू बी योर मीडियोकर, इफ यू वांट टू गिव इट योर बेस्ट, तो फिर मेरा ख्याल है कि प्रेशर तो फिर आप हर चीज़ का ही लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन मैम और सर आप दोनों से है कि हर किसी का कोई ना कोई फोबिया होता है, तो आपका भी है, आप दोनों का? फोबियाज हैं आपके? भाई आई हैव अ लॉट ऑफ फोबियाज, ठीक है। मुझे रेप्टाइल्स का बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं किसी कमरे में चिपकली हो तो मैं तो खुदा हाफिज। आई ऑल्सो हैव समथिंग विच इज़ कॉल्ड, आई रेड
ट्राइफोबिया आई थिंक, कि उसके अंदर परफोरेशंस अगर आपको कहीं नजर आए या कोई पैटर्न इस तरह का नजर आए जिसके अंदर बहुत सारे डॉट्स होते हैं या एवरीथिंग इज टुगेदर, सो दैट काइंड ऑफ गिव्स मी a lot of anxiety. बहुत phobias. छिपकली तो ना औरतां बहुत ज्यादा डरदी ने, खामद छिपकलियां अपनियां लेके आउंदे ने कि साडे मेरे कोल क्यों देख रहे हैं? आपको भी कोई है फोबिया? ऐसा कोई मेरा फोबिया नहीं है, बट हाँ एक फोबिया मेरा बचपन से है कि लाइक योर पेरेंट्स और द लव वंस वो आपको छोड़ के कभी ना जाए। तो ये एक मेरा फोबिया है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से, इफ़ यू हैव अ स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, तो अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा करते हो तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, बट ऐसा होता है कि कभी कभी आपको वो लोग चाहिए होते हैं अपने साथ हर स्टेज पे, चाहे नाराज़गी है। तो वो मेरा एक फोबिया है कि यार इफ़ यू लूज समवन तो ओके, इट्स रियली मैटर। जी। अस्सलाम वालेकुम।